आज का टॉपिक दुनिया का सबसे खूबसूरत टॉपिक है. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव. सेल्फ लव होता क्या है? सो कैसे पहचाने दैट वी आर नॉट लविंग आवर सेल्फ? हेलो माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक दुनिया का सबसे खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक खूबसूरत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी इससे ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकता. अब तो गेस कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो नाउ लेट मी शेयर. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव. जब मैं सेल्फ लव के बारे में ये वर्ड यूज़ करती हूँ, आई नो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बबल बाथ में या कहीं घूमने जाना, यू नो लग्जरी में जीना. नो माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट सेल्फ लव. सेल्फ लव होता क्या है? देखिए, अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो और आप उसको जैसे ट्रीट करते हो, अगर आप वही चीज़ अपने लिए करो तो कैसा लगेगा? इट्स अमेजिंग, isn't it? So self love, So self love is all about learning about yourself. It's all about knowing who you are. It's about knowing your belief, knowing your habits, knowing how is your thought process. Because until unless you don't understand how you think, what do you want, others are strangers for you. And then you complain that my partner don't understand me. Dear friend, until unless you don't get you, nobody will get you. So this is a very complicated as well as it's very easy. Okay, you might have seen that book Louise Hay. I know a lot of my viewers might have seen or read that book, How to Love Yourself. She has given outstanding work, how to read yourself, how to know yourself. जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगती है कि मिरर वर्क. ओके, और ये आज से कई साल से मैं खुद करती आ रही हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रेकमेंड करती हूँ. Now, how this self-love can change your life? Let me just tell you one small story. A story about one of my clients. Okay, because there are so many clients, people come to me all across the world. There was a lady and she was in love with someone who never loved her. उसे कभी उसने प्यार ही नहीं किया, but इसके दिल में उसके लिए बहुत प्यार था. Okay, and कहीं ना कहीं से उसको मेरे बारे में पता चला. एंड शी केम टू मी एंड शी सेड, "अग्नि, आई डोंट वांट टू मिस दिस गाय बिकॉज मैं इस इंसान को बहुत प्यार करती हूँ. आप प्लीज़ मुझे वो सारी चीज़ें बता दो कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए." और वो मुझसे प्यार करने लगी. तो मैंने उससे कहा, "ओके, बट यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स. आर यू रेडी?" शी सेड, "आई कैन डू एनीथिंग टू गेट दिस मैन इन माई लाइफ." And I was feeling very sad, and at the same time happy because here she is to love herself. She's come to me, okay, and I started giving her some task, and the task was how to love yourself. And she said, "No, I don't need this. I want to love this man. I just want him in my life." I said, "Hey, if you want to marry a prince, you have to be a princess. So, how the prince walks, how he talks, how he thinks, what is his behavior, you have to become a princess to get a prince in your life." In the beginning, she was a little complicated and she was confused. But जैसे जैसे मैंने उसको काम देना शुरू किया, she started getting it, and she started becoming serious about herself. Because there are so many things we don't know. We don't know from where to learn these things. हमें स्कूल में
हिस्ट्री के बारे में तो पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता है, पैसा कैसे कमाना है इसके बारे में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन खुद को प्रेम कैसे करना है ये नहीं सिखाया जाता। माय डियर फ्रेंड्स, which is the most essential root of each one. We all should know who we are, why we are here, what is the purpose, what we like, what we don't like. I've seen a lot of people who are in toxic relationship and still they want to be with that person. एक लड़की आई मेरे पास and she said, my boyfriend hits me but I cannot leave him because I love him. मैंने कहा कमाल की लेडी हो आप तो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको पसंद नहीं करता, तुम्हें मारता भी है, बट आप उसी के पीछे हो. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और हीलिंग और कोचिंग. एंड शी वॉज शॉक्ड. शी सेड, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मुझे आपको पैसे देने हैं, आपसे मैं she wanted to have counseling, consulting. I said, I cannot do that for you. Only if you're ready for one thing, I can do. And she said, what? I said, you have to know yourself. You have to respect yourself. तुम अपना सम्मान नहीं करती हो ना, इसलिए वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता. और उसकी समझ में नहीं आ रहा था. Because we are not aware of these things. So self-love starts with self-awareness. कि पहले हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, ये गहराई में जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है. ओके, सो एक सच्चा प्यार क्या है? बाहर तो हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर हम खुद से कितना प्यार करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सच्चे प्यार में अपने अंदर के उस चाइल्डहुड की बच्ची को या बच्चे को जानना है जो आज भी रो रहा है हमारे अपने प्यार के लिए. We don't know what is self-respect, and we think that people should love me, people should care about me. How much do you care about yourself? Are you really knowing who you are? Do you know your boundaries? Or you are just saying yes to people with a fear of rejection? Then you are not in love with yourself, or you cannot be in love with someone else as well. It's a reality. A lot of people on this earth have no clue the difference between selfishness and self-love. जैसे मैंने कहा, हमें घरों में सेल्फ लव के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता है. उनकी गलती किसी की नहीं है, बिकॉज इवन दे डोंट नो. ओके, सो कैसे पहचाने दैट वी आर नॉट लविंग आवर सेल्फ? ओके, फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, you will do lot of pleasing to other people. यानी आप ऐसा कुछ करोगे सामने वाला बस खुश रहे, इसे कहीं से तकलीफ ना हो, ये कहीं से मुझसे नाराज़ ना हो. तो आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने आप को दुख दे के सामने वाले को खुश करते हो, यानी प्लीजिंग, है ना. यू आर ऑलवेज प्लीजिंग अदर्स. ये पहला साइन है. दूसरा, जो बिना मतलब गुस्से में बात करता है, जिसको बात बात पे गुस्सा आता है, जिसके मुंह से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं है, हर पल अगर उससे बात करो तो गलत बात ही करता है ना. इसका मतलब यह है कि ऐसा इंसान अपने आप से बहुत नाराज़ है या दूसरों से बहुत नाराज़ है, क्योंकि जो नाराज़ होता है उसके ही अल्फाजों में ऐसे शब्द निकलते हैं, है ना. तीसरा है कि हमेशा वो बाहर लोगों से पूछेगा, ये मैंने ठीक किया ना, ये मैंने अच्छा किया ना. यानी कहीं ना कहीं उसको अपने पे विश्वास नहीं है. तो वैलिडेशन, ना, सी एक है कि सिंपली जस्ट आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ वैलिडेशन, बट हमेशा बाहरी लोगों पे डिपेंड रहना ये डेंजरस है ना. और अपने आप को ये बताना कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, जैसी भी हूँ वैसी भी हूँ, यू नो, विदाउट नोइंग योरसेल्फ. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये सबूत मिलता है कि यू आर नॉट एक्चुअली इन लव विद योरसेल्फ. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि फोकस ऑन दीज फ्यू थिंग्स. ओके, पहला, सेल्फ अवेयरनेस.
सेल्फ अवेयरनेस में आता है जनरलाइजिंग, यानी अपने बारे में देखना कि मैंने कल से कुछ बेहतर किया, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने अंदर। ओके, अपनी हैबिट्स को देखना, अपने शब्दों को देखना, अपने लाइफ के पैटर्न को देखना कि एम आई फीलिंग हैप्पी वॉट एवर आई एम डूइंग। फिर उसमें आता है कि अपने आप को ही कोच करना, है ना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बाहरी दुनिया में लोगों से काउंसलिंग कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो। आप बाहर दुनिया से कुछ कुछ चीज़ों से सीख के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ओके, ठीक है। फिर आता है मिरर वर्क, जिसके बारे में मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मिरर वर्क मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेमेडी कहूँगी सेल्फ लव के बारे में, है ना, विच इज़ वेरी नाइस। और चौथा है शैडो इंटीग्रेशन। शैडो इंटीग्रेशन में चीज़ें क्या होती हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता है और वो हमारा पीछा करती हैं। ठीक है, इसकी गहराई में और हम थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना। या चलो एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें तकलीफ दी है पास्ट में और तुम उसको सामना नहीं करना चाहते हो, उससे भाग रहे हो, है ना। कोई भी चीज़ से तुम्हें ऐसे कहेंगे कि पसंद नहीं थी फिर भी तुमने किया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा शैडो इंटीग्रेशन है। अपनी चीज़ों को तुम हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हो, उससे भागना चाह रहे हो। ठीक है। दूसरा है, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी को ना नहीं कह पाते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा आई कैन से ये गिल्ट है, क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने किसी को, ये प्लीजिंग में ही आता है, व्हेन यू वांट टू प्लीज पीपल, यू नो। तो व्हेन यू कांट से नो टू पीपल, दिस इज नॉट फाइन, बिकॉज ये तुम्हारे अंदर एक गिल्ट लाता है, और गिल्ट सेल्फ लव में एक बहुत बड़ा बैरियर है। ओके, गिल्टी अगर आप फील कर रहे हो कोई भी चीज़ को लेके, मतलब आप खुद को प्यार नहीं करते हो, है ना। सो गिल्टी इट्स वेरी डेंजरस, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। बिकॉज आप अगर उसी रिलेशनशिप में बहुत समय तक रहते हो, आप डैमेज हो जाते हो, और जब आप डैमेज हो जाते हो तो आप तो हो ही नहीं, और जब आप हो ही नहीं यानी आप अपने अंदर मर जाते हो। तो आप सोचो, जब आप अपने अंदर मर जाते हो तो सामने से कोई और आपको कैसे प्यार करेगा। Nobody loves dead people. Everyone loves alive, you know, aware people. आप समझ रहे हो, you know, it's such deep. Okay? So अपने लिए एक एनर्जेटिकली एक स्पेस तैयार करो अपने लिए। ओके, एक अपनी आपकी इमोशन स्पेस होनी चाहिए, यानी खुद को समझने के लिए। जैसे मैंने कहा मिरर वर्क, तो ये मिरर वर्क के लिए आपको दरवाज़ा बंद करके रूम में जस्ट बी विथ योरसेल्फ एंड लुक इन द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ हाउ आर यू डूइंग, एज इफ समवन एल्स इज आस्किंग यू, एंड बी वेरी ऑनेस्ट टू स्पीक योर फीलिंग इन द मिरर। Just talk as if you are talking to someone who is very close to you. If you start doing this every day, you will see a very minute shift happening in 21 days. But continue this for 3 months and you will be a very different personality. क्योंकि यहाँ तुम जब खुद से बात करने शुरू कर दिया है ना, तो बात करते करते फिर आप अपने गुस्से को भी you will be able to notice that yes, you are angry on this example. Like if you ask me, Agni, what happened, I'll say I'm very upset with you because you did not give me this, and that hurts me. And then okay, I will see my expression. What is my expression telling you? And then you will come to know, okay, so Agni is hurt, so next time I will not do. ऐसे ही करते करते जब हम मिरर वर्क करते हैं ना, तो हम अपने अंदर के डायलॉग से, योर सेल्फ टॉक,
वी स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ टॉक, जो हर वक्त अंदर बात करता रहता है, दैट इनर वॉइस वी कॉल, ठीक है ना। सो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू दैट इनर वॉइस, देन तुम्हें ख्याल आता है, ओ माय गॉड, मैं तो अपने आप से बहुत ही गलत बात करती हूँ या करता हूँ, यू नो। और फिर हमें धीरे धीरे अपने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में पता होना शुरू हो जाता है। योर इंटरनल वर्ल्ड इज एवरीथिंग, अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। Outside world is a projection of your internal world. If someone is treating you well, it means somehow, somewhere in your internal world, you are treating well to yourself. So these are the things that will bring compassion, love towards you instead of shame. I've seen a lot of people, they carry so much of shame, so much of guilt, so much of नेगेटिव स्टफ अबाउट देमसेल्फ। तो जब आप मिरर वर्क करते हो, धीरे धीरे इनर डायलॉग से आपका परिचय होता है, फिर धीरे धीरे इनर वॉइस के बारे में पता चलता है, फिर धीरे धीरे आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को समझना शुरू करते हो, तब आप अपना डायलॉग यानी हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर ओन सेल्फ स्टार्ट्स हैपनिंग। मैं वैसे भी ट्रेनिंग देती हूँ हाउ टू डू सेल्फ लव, सो यस, यू कैन ऑलवेज एनरोल फॉर दोज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग्स एंड क्लासेस, सो यू कैन ज्वाइन। देन कम्स सेल्फ नरिशमेंट। सो व्हेन आई से सेल्फ लव, देन कम्स सेल्फ नरिशमेंट। नाउ व्हाट इज सेल्फ नरिशमेंट? ठीक से सोना, अच्छा खाना खाना, ओके, एंड इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना। तुम अगर किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हो कि दिस इज व्हाट आई हैव फीलिंग फॉर दैट पर्सन, बट यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर कीपिंग इट इन योर हार्ट, और अंदर अंदर उससे नफरत करते हो, गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन बाहर यू आर वेयरिंग अ मास्क एंड यू आर टॉकिंग समथिंग डिफरेंट टू दैट पर्सन, इट मीन्स यू आर नॉट नरिशिंग योरसेल्फ। ये खुद से बेईमानी है। You're ditching yourself inside, you know, you are actually playing with yourself inside, and when your lover plays with you and ditch you, then आपको ट्रिगर होता है कि ये मुझे छोड़ के कैसे बाहर जा सकता है, ये किसी और के साथ कैसे जा सकती है, because she or he is a reflection of you. So it's very very important, and of course please do meditation. Why we should do meditation? Meditation is the only way to understand yourself, because when you meditate, you're sitting silently, not moving at all for 1 hour, and in that 1 hour you will be able to see the chaos of your inner self, that how are you talking to yourself, what are you talking to yourself, how your mind is chirping so much 24/7, 24 घंटे ये मन हमारा अंदर चपड़ चपड़ करता रहता है। इसको शांत करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। द मोर यू मेडिटेट, द बेटर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। नेक्स्ट इज लाइक प्रैक्टिस डेली मिरर वर्क। डेली मिरर वर्क में क्या कहना है? आई सी यू, I choose you, I love you. At least 3 dialogues you have to talk to yourself daily. To start with, this is the beginning. I see you, I choose you, I love you. Just these 3 dialogues. Daily करना शुरू करें, उसके बाद spend time with yourself. हम चाहते हैं कि हमारा लवर हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, you know, but जब आपके अंदर सड़न है, जब आपके अंदर गंदगी है, जब आपके अंदर इतना क्योस है, इतनी भीड़ है, तो कैसे कोई साथी आपके साथ बैठेगा? तो पहले तो अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है, जो भीड़ है, उसे हटाना पड़ेगा। वो कैसे? स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ ऑल अलोन। आफ्टर मेडिटेशन, गो ऑल अलोन, हैव अ वॉक, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. What is that I didn't do best about myself? Where did I not respect myself? Where am I giving myself too much and I'm not valued?
यू नो। तो जब आप अपने आप को साक्षात्कार कहोगे, जिसको मैं कहती हूँ साक्षी भाव, यू नो, then you become aware about your patterns, your behavior, you start alterations. आप ठीक होना शुरू करते हो कि अब बस हो गया, मैंने सामने वाले को बहुत अपने आप को दे दिया, now enough. Okay, so again, self love is not luxury. बुर्ज खलीफा में जाके फ्लैट लेके रहना या होटल में रहना, it's not self love. Understand, my dear friend, that is not at all self love. Self love can be also done in a jungle, being with yourself and enjoying that moment with yourself. यानी आप जहाँ हो, जिधर हो, अपने आप को जैसे हो स्वीकार करना, अपने आप को प्यार करना, अपना सम्मान करना. Okay, so it's a foundation, because if you cannot make your foundation strong, how can you expect someone else to pay attention to you? How can you expect someone else to appreciate you? Because if you're not appreciating yourself, you have to know yourself from within. All right, now here also I want you to understand about self-love is having some promises for yourself. कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाले ने मुझसे प्रॉमिस किया था, उसने रखा नहीं. अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि एग्जाम्पल, हे अग्नि, कल से तुम उस इंसान से नहीं मिलोगी जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता है. सम्मान नहीं करता है. पैसे बहुत मिलते हैं वहां, सम्मान नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. पैसे मिल रहे हैं तो सम्मान जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यू आर बीटिंग योर सेल्फ. आई सीन लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम टू मी एंड दे से मेरा बॉस मुझ पे बहुत चिल्लाता है, तो मैं कहती हूँ छोड़ दो जॉब, कहीं और जॉब करो जहाँ तुम्हारी वैल्यू हो. सो वेयर यू आर वैल्यूड, बट दिस कैन ओनली कम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विदिन, when you start peeping inside, when you start caring about your feelings, when you start to fulfill your own dreams, you know. So it's very deep and it's a journey. This will not happen just in 21 days. It will take 3 months, 4 months, 6 months, you know, and it will continue. So self love is very important. Always be careful about loving yourself. Always see where can you generalize yourself, where can you not judge yourself but know yourself, and start correcting yourself inside, because the other person is your mirror, your reflection. One more thing I want you to do it with yourself, and that is generalizing. हर दिन अपने आप से एक सवाल ज़रूर करना है कि आज मेरा दिन कैसा था, क्या मैं आज पूरी तरह ठीक थी. या हो सकता है हर 2 घंटे में आप अपने आप से सवाल कर सकते हो, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, एम आई फाइन, इज माई मूड फाइन, ओ मे बी आई एम नॉट फाइन, what is not fine about me, am I upset, for what am I upset, that person hurt me and I didn't reply that person. Okay, tomorrow I will talk to that person assertive way. तो ऐसे ही you have to generalize, you have to check yourself, keep checking, and also see what things you want to do for yourself which you haven't done since long time. So it's time to fulfill your desires, okay, because you are the one who will fulfill your own dream. Nobody else is going to come to fulfill your dreams. And of course, emotional, if you're feeling emotional, if you feel there is some hurt, speak to yourself, talk to yourself. What is bothering me? Who is taking my energy? Why am I upset? Can I correct it? Can I be better now? What can make me better now? What can I do to correct myself and be happy right now and forget that past? Keep talking to yourself. It's just like you're talking to yourself. Okay, this is very important because this helps you to become more aware about your mental state, about your emotional state, and about your physical state. If you have pain in your body, just
check why are you having pain. Maybe you have worked so much that you didn't care about your body, you know. And I've seen there are a lot of people, they keep working and end of the day they feel, oh, I'm so tired. So the body says, I want rest. Remember, resting is a wisdom for the body. So the more you give rest to your body, you are respecting and honoring your body, which is very, very important. So this brings more and more clarity and accepting as you are. There is so much to understand your each every body part. We will maybe talk in next episode about each and every body part, what it says, how we should be treating it. So treat yourself the way you want others to treat you. Sometimes we are a big mystery for ourselves, okay, and we don't know about ourselves, how to improve. Of course, there are life coaches, there are personal counselors, there are people who can sort it out things for you. So never ever feel ashamed to go to your therapist or a counselor or a coach, because they know what to correct in you. सिंपल सी बात है, आप अगर कोई डिज़ाइन बनाते हो तो पहले तो आपके माइंड में वो डिज़ाइन आती है, उसके बाद आप उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हो। या एक अगर पेंटर है तो उसके पास कैनवास होता है, कैनवास के बाद उसके पास कलर्स होते हैं, है ना, और उसको पता है कि उसके मन में क्या डिज़ाइन आ रही है, तभी वो कैनवास पे बनाता है। लेकिन अगर तुम पेंटर नहीं हो और सिर्फ कैनवास है आपके पास, तो आप कैसे पेंटिंग बनाओगे? तो मैंने देखा है बहुत से लोग हमारे इंडिया में खासकर, दे फील कि दे गो टू कोचेस और मेंटोर्स और थेरेपिस्ट और अ काउंसलर, उनको लगता है कि ये पागल हो गए हैं तभी दे वांट टू गो टू सच पीपल। नो, in Western countries everybody have their own coaches, everyone have their own therapist, and they feel good about it, because when you have someone to guide you, you grow, you see a different dimension of life which you haven't yet even thought about it. So never feel ashamed about having your own therapist or a coach or a counselor. So this is my humble request or advice. Yeah, that's what I wanted to say. Don't be ashamed of getting connected to the coaches and mentors. My dear friends, so date yourself, go for dating with your own self. Don't wait for someone else to date you. Give amazing gift to yourself rather than waiting for someone else to give you the best gift, because nobody is as important as you on this planet. आप हो तो सब है, आप नहीं कुछ भी नहीं। इस अहमियत को अगर आप समझ गए तो आई विल थिंक मेरा आज का एपिसोड किसी की लाइफ को तो बदल पाया है। ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक के साथ मैं आती रहूँगी, आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, जिससे कि मैं अपने आने वाली टॉपिक्स में और क्या क्या बात करूँ। सो आई एम हियर open to speak on what you want. So till then, take care, have a great day and a time. Bye bye, your friend Agni.